जीएसटी बिल इसी सत्र में पास होने को लेकर वित्त मंत्री ने नहीं छोड़ी अभी भी उम्मीद। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में की कांग्रेस से अपने रुख पर दोबारा विचार करने की अपील। ब्लैक मनी निकालने की सरकार की स्कीम को मिला ठंडा रिस्पांस, आखिर क्यों आगे नहीं आ रहे लोग? बात करेंगे इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपीओ सवाल से। 63 साल के इतिहास में पहली बार ईपीएफओ ने बाजार में की एंट्री। इस साल इक्विटी में करेगा 5,000 करोड़ रुपए का निवेश। कहा अगर रिटर्न उम्मीद के मुताबिक मिले तो बढ़ाएंगे निवेश। निचले स्तरों में से आज बाजार में आई अच्छी रिकवरी, 8,600 के करीब पहुंचा निफ्टी, लेकिन मिड कैप्स की तेजी थमी। आरबीआई की मॉनिटरी कमेटी में सरकार और आरबीआई के हो सकते हैं 3-3 सदस्य, लेकिन टाई ब्रेकर होने पर गवर्नर की सुनी जाएगी बात। भारती एयरटेल ने शुरू की 4G सर्विस, 25 रुपए से शुरू होगा डेटा पैक। 4G हैंडसेट बेचने के लिए सैमसंग और फ्लिपकार्ट से किया करार। नमस्कार, ये है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी टॉप हेडलाइन। ये आरोप सिरे से गलत है, असत्य है, निराधार है। अध्यक्ष जी, मैंने कभी भी ब्रिटिश सरकार से ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने का अनुरोध नहीं किया। सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की मदद के सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। लोकसभा में कहा ब्रिटिश सरकार से ललित मोदी की नहीं की सिफारिश। देश की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कंपनी शॉपर स्टॉप ने स्नैपडील के साथ मिलाया हाथ। अब स्नैपडील पर बिकेंगे शॉपर स्टॉप सामान। दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 सितारों में शामिल अमिताभ, सलमान और अक्षय कुमार। 213 करोड़ की कमाई के साथ 7वें नंबर पर अमिताभ। और भारतीय बाजार में ताइवान की मोबाइल कंपनी आसूस का बड़ा दाव, एक दिन में उतारे 3 नए फोन। और सबसे पहले वित्त मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। विपक्ष के विरोध के चलते संसद के मॉनसून सेशन के बिना किसी खास कामकाज के खत्म होने के आसार दिख रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी बिल को लेकर अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। नेटवर्क 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार के पास अभी भी काफी विकल्प हैं। I have to begin my question with the goods and services tax. For whatever reason now, Parliament is not functioning. Are you even in a position to table the GST constitutional bill in the Rajya Sabha? No, tabling is not an issue. Parliament still has a little over a week to go. And a week is too long a time in politics. And therefore, I hope in those who are disrupting India's Parliament. And by disrupting Parliament, they want to disrupt the process of economic growth of India, so that the momentum which has picked up is somewhat halted. Don't pursue that course. Better sense prevails, and they allow a normal functioning of Parliament. Since it's a constitution amendment, there has to be a vote by pressing the button. And for that, the House has to be in order. And it would be much better that they sat on a table, discussed the bill on its own merits, and then which is a larger consensus, because except for the Congress, almost every party is in agreement. One or two parties have given a nominal dissent, but I understand they are in support of the bill because those parties in the Lok Sabha, most of them had supported the bill, and there is no reason why they will take a different stand in the Rajya Sabha. And therefore, the numbers being overwhelmingly in support of the bill, all states being in support of the bill, the Congress-ruled states having seriously backed the bill, the two finance ministers that the Congress had when in power having seriously backed the bill, I do hope some better sense prevails and they have a rethink as far as the GST is concerned. But just in case the Rajya Sabha does not function in the last week, what is the game plan? Is that deadline of 1st April 2016 then gone? Are you looking at a new deadline?
Well, I am not going to ever give up hope because it's my job to pursue it and pursue it seriously. There are many other options available in politics. I am not in a position to declare all of them in the media right now. And I would say the deadline for 1st April 2016 is an ideal deadline. It's a deadline which not only the central government, all the state governments want. It's going to expand revenues, it's going to make taxation much easier, it's in the interest of trade, it's in the interest of economy, and mere cussedness on behalf of one party should not thwart that process. You have lots of options. You don't want to declare them, but can you give us an idea? What is extending the session, a joint session, a special session, what? No, a joint session is not a constitutional option available for a constitution amendment. It's only available for an ordinary legislation, not for a constitution amendment. So that's obviously ruled out. But then you have the parliament in session. You have a parliament which can be called any time. And therefore, if the present impasse is to end, and the Congress party is to come on a negotiating table and discuss the merits of the bill, I am quite certain that they'll turn around to support the bill, because conventionally it was their bill also. If I could now come to land, it did look like there was never going to be any breakthrough with that ordinance, so you've now decided to give the freedom to states. Do you sometimes now look back and think, why didn't we do that in the first place into repromulgating ordinances? Well, I don't want to make a final comment on it. But I would urge my friends in the media who are discussing this to please read the law. Clause 10A of the 2015 bill also said the appropriate governments may notify any or all of the above. So the option even under the bill was with the states. And therefore, whether under the bill it is with the states or outside the bill it is with the states, it effectively amounts to the same. You also brought about a case on why this government must spend more. For you to spend more, you will also need those proceeds from disinvestment to come through. We are in the month of August. So far, only 2 small issues have taken place. Are you confident of meeting that daunting task? Well, we've given a large amount as a target for disinvestment, and we have a schedule. We have our hands full, and we are just in the process of deciding on various company, except that we can't announce the schedule in advance. If you announce the schedule in advance, then you find a lot of stock market practices which go to attack those particular schedules. So there's an element of surprise which we have to give to the market also. And therefore, please wait for the next few weeks. तो यहाँ पर वित्त मंत्री काफी आशान्वित दिख रहे हैं बिल्स को लेकर, लेकिन देखना होगा कि सरकार इसमें कामयाब हो पाती कि नहीं। इस बीच एक न्यूज फ्लैश आपकी स्क्रीन पर आया था, उसके बारे में आपको जानकारी दे दे। वेदांता को गोवा में फिर से आयरन ऑर की माइनिंग करने की इजाजत मिल गई। 10 अगस्त से गोवा में आयरन ऑर और माइनिंग वहां पर वो शुरू कर देगी, तो कंपनी के लिए एक राहत की खबर आती हुई। आगे बढ़ेंगे। काले धन का खुद खुलासा करने वाली स्कीम को काफी ठंडा रिस्पांस मिल रहा है। इससे चिंतित वित्त मंत्रालय स्कीम के प्रचार प्रसार में जुट गया है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, इस स्कीम के तहत अब तक कितने लोगों ने काले धन का खुलासा किया है, और इस ठंडे रिस्पांस के पीछे जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई वजह है खास? जी बिल्कुल, इस स्कीम के तहत करीब 1 जुलाई से इस स्कीम की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मुश्किल से गिने चुने इक्के दुक्के लोगों ने डिस्क्लोज किया है, खुलासा किया अपने काले धन का जो विदेशों में उन्होंने रख रखा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो खुलासा किया गया है कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा, उसमें रकम काफी कम दर्शाई गई है। इस वजह से जो सरकार ने ये उम्मीद कर रखे थे कि स्कीम में हम ये छूट दे रहे हैं कि 60% तक ड्यूटी चुकाएंगे तो आपको कोई जुर्माना, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस छूट का लोग काफी बढ़ चढ़कर फायदा उठाएंगे। शायद वित्त मंत्रालय की इस उम्मीद पर पानी फिरता दिख रहा है। अब वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल शुरू में भले ही ठंडा रिस्पांस मिल रहा हो, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे स्कीम की मियाद खत्म होती नजर आएगी, वहां पे रिस्पांस तेजी से बढ़ेगा। और उम्मीद ये की जा रही है वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से कि 30 सितंबर से पहले, सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते से अचानक से काफी लोग यहाँ पे अपने काले धन का खुलासा करना शुरू करेंगे, क्योंकि 30 सितंबर जो है ये आखिरी डेडलाइन है इस स्कीम के तहत काले धन खुलासा करने को लेकर के। और लेकिन हमें सूत्र ये बता रहे हैं कि खुलासा
खुलासा नहीं हो रहा है या फिर काफी चंद लोग कर रहे हैं, इसके पीछे ठोस वजह यह है कि स्कीम के तहत जो नियम बनाए गए हैं वो नियम काफी सख्त है और लुभावने नहीं है, जिससे फायदा हो लोग खुद खुलासा करें। मिसाल के तौर पर आपके खाते में कितने पैसा विदेश में जमा हुए हैं काले धन का, उसका कैलकुलेशन का तरीका कुछ ऐसा कठिन है कि आपने 10 लाख जमा किए, 5 लाख निकाल लिए, फिर 5 लाख जमा कर दिया तो आपका टोटल डिपॉजिट 15 लाख माना जाएगा। 5 लाख जो निकासी है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसे ही बाहर की जो प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, उसका वैल्यूएशन का तरीका काफी कठिन है। इन सब वजहों से लोग काफी ठंडा रिस्पांस दे रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय इस गंभीरता को समझ रहा है, अब प्रचार प्रसार में जुट गया। 10 तारीख को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के साथ बैठक भी कर रहा है इस मुद्दे नहीं, और जिस तरह से यूट्यूब पर एक पूरा टॉकाथॉन भी हुआ था जिसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी शक्तिकांता दास और सीबीडीटी की चेयरमैन अनीता कपूर ने सारी बातें समझाई थी, लेकिन ओसवाल साहब, क्या आपको थोड़ा सा भी आश्चर्य कि इस स्कीम में रिस्पांस काफी ठंडा है? देखिए, इतना जल्दी इसको एस्टिमेट करना कि रिस्पांस अच्छा है, ठंडा है या बहुत बढ़िया है, मेरे हिसाब से गलत होगा। क्योंकि अभी तक तो गवर्नमेंट ने सिर्फ फर्स्ट टाइम एक इंटरव्यू में कुछ खुलासे किए हैं और वो भी कोई बड़ी बात कही नहीं है। जितने क्लैरिफिकेशन हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, इनफैक्ट हमने भी गवर्नमेंट को लिखा था कि हमारे पास कुछ सवाल है, उसके जवाब जरा बताइए, तो उसका भी कोई रिस्पांस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये मामला ऐसा है, जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कंसल्टेंट लोगों को भी दिल में तसल्ली हो जाए कि हम जो सोच रहे हैं वो करेक्ट है, तो वो एडवाइस क्या करेगा क्लाइंट को। जो अभी लक्ष्मण दास ने कहा था कि शिथिल नियम इतने स्ट्रिक्ट बनाए हैं, कठिन बनाए हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लाई। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स के साथ डिस्कशन करना चाहिए और कहना चाहिए और क्लैरिफिकेशन देने चाहिए। जैसे मैं आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूं, चिदम्बरम जी ने जिस समय वो स्कीम निकाली थी 1996-97 में, वो हर सिटी में जाके एक रोड शो किया था उन्होंने, और हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एसोसिएशन है उसको जाके क्लैरिफिकेशन दिया, और जो भी सवाल लोगों ने पूछे उनको उसका क्लैरिफिकेशन उन्होंने इश्यू किया ऑफिशियली जी। तब जाके लोगों में तसल्ली हुई और लोगों ने क्लैरिफिकेशन के तहत लोगों को एडवाइस किया कि आप स्कीम का एडवांटेज ले लीजिए। आज के तारीख में हमें भी डिफिकल्टी है लोगों को एडवाइस करना कि ये स्कीम का एडवांटेज आप ले या नहीं ले, क्योंकि कुछ क्लैरिफिकेशन तो है नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेन में एसेट है और आप डिक्लेयर कर दो, तो कल के माने आज के तारीख में तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में छूट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में इसकी छूट दे दी गई है। भविष्य में उसका क्या होगा? उस एसेट को वापस लाना पड़ेगा क्या इंडिया में? यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह देती है, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये बता दीजिए ये एसेट हमारी बाहर पड़ी है, क्योंकि एसेट लिक्विडेट करना इम्पॉसिबल है, तो लोग शायद क्लैरिफिकेशन यदि दे देते तो स्कीम का एडवांटेज उठाएंगे। तो ओसवाल साहब, आपका कुल मिला के कहना यह है कि इंस्टेड आप प्रचार प्रसार पे ध्यान लगाएं, ज्यादा बेहतर है कि एक्सपर्ट को बुलाएं, क्लैरिफिकेशन दें और एक साफ तस्वीर पेश करें कि ये कुल मिला के होने वाला है, तो शायद ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। टेलीविजन चैनल पे इंटरव्यू देने से अच्छा है कि जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट है बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर में, उनके साथ में बैठ के उनकी जितनी डिफिकल्टीज है उसको समझें, और ये डिफिकल्टीज यदि उनको लगता है कि इस पे क्लैरिफिकेशन इश्यू करना चाहिए तो एक क्लैरिफिकेशन सर्कुलर के द्वारा जारी करना चाहिए, न कि सिर्फ खुद सोच के बोल सकते हैं कि हमने सोचा वही सही है। लोगों की डिफिकल्टीज यदि आप नहीं समझोगे और अपने आप से कुछ क्लैरिफिकेशन दोगे तो किसी को समाधान नहीं होगा इसमें। जी, तो आगे मैं ये समझना चाह रहा था। जी लक्ष्मण को है ओसवाल साहब, मैं ये समझना चाह रहा था कि आपको लगता है कुछ मौजूदा जो कानून है इस स्कीम के तहत उसमें फेरबदल करने या फिर ढिलाई देने की जरूरत है सफाई देने के अलावा? बिल्कुल जरूरत है। जैसे इन्होंने कहा है कि पीएमएलए एक्ट लगेगा, जैसे इन्होंने कहा हम यदि आपकी फॉरेन एसेट है तो उसकी इक्विवेलेंट एसेट हम इंडिया में अटैच कर लेंगे। लेकिन यदि मेरे पास फॉरेन एसेट है और मैं आज डिक्लेयर करना चाहता हूं गवर्नमेंट को, टैक्स भर के, टैक्स भी भरने को तैयार हूं, तो उस फॉरेन एसेट का भविष्य में क्या होगा? क्या मैं वो कंटिन्यू कर सकता हूं? क्या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट उसको लग जाएगा अगले साल में और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर वो इंडियन प्रॉपर्टीज अटैच कर लेगी? ये सवाल गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन करना इनका बहुत जरूरी है। यदि गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन करेगी तो मेरे हिसाब से स्कीम सक्सेसफुल हो सकती है। एक आपने सवाल उठाया था बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड टोटल ले लीजिए, लेकिन ये सवाल इतना संगीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आप यदि
जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। हेलो जी, हम सुन रहे हैं ओसवाल साहब। हेलो। तो यदि बैंक अकाउंट मेरा इंडिविजुअल के नाम पे है तो उसकी क्रेडिट साइड की टोटल ले लीजिए, लेकिन यदि मैं कोई बिजनेस में पार्टनर हूं या मैं कंपनी में शेयर होल्डर हूं और मैं उस कंपनी के शेयर की वैल्यू डिक्लेयर करना चाहता हूं, वहां तो नेट एसेट वैल्यू ली जाती है, ली जाएगी, वहां तो डेबिट क्रेडिट का कोई सवाल ही नहीं आता है। तो ये इंडिविजुअल के लिए ऐसी की दुबनताई इंडिविजुअल के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? यदि किसी ने प्रोप्राइटरशिप धंधा किया है फॉरेन में, तो उसको भी नेट क्रेडिट दे देना चाहिए। कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसे सवालें हैं और सिर्फ एक तरफ से प्रचार और प्रसार से बात नहीं होगी। लक्ष्मण, इनफैक्ट ओसवाल जी से बात करके दिमाग में ये भी आइडिया आ रहा है, थॉट आ रहा है कि क्यों ना हम सरकार की तरफ से किसी को भी न्योता दे और ओसवाल साहब जैसे एक्सपर्ट्स को भी न्योता दे कि आमने सामने बैठ के अपने सवाल पूछे, क्लैरिफाई करे, तो कुछ तरह की सफाई इस मामले में आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण और ओसवाल जी हमसे बात करने के लिए। और यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे 63 साल के इतिहास में अब पहली बार ईपीओ ने बाजार में ली है एंट्री। कैसा रहा आज के बाजार का हाल, बताएंगे पूरा एक्शन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर बाजार में कदम रख दिया है। आज से ईपीएफओ के निवेश की शुरुआत हो गई है। ऑर्गेनाइजेशन की योजना शेयर बाजार में इस वित्त वर्ष में 5 से 6 हजार करोड़ रुपए निवेश करने की है। आने वाले सालों में निवेश की रकम को और बढ़ाया भी जा सकता है। अब आपके प्रोविडेंट फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में भी लगाया जाएगा। ईपीएफओ ने इसकी शुरुआत कर दी है। फिलहाल ईपीएफओ अपने फंड में होने वाली बढ़ोतरी का 5% तक निवेश करने जा रहा है। ये रकम करीब 5 से 6 हजार रुपए के बीच होगी। हालांकि आगे जाते हुए शेयर बाजार में उसका निवेश और बढ़ाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट ओनली अप टू 5% of a fresh flows into ETF. This decision would be reviewed in the next financial year and depending upon our experience, the investment in equity. हमें जो क्रिसिल ने और हमारे जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं जिन्होंने हमें बताया है, उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम यदि कर रहे हैं तो हम 15% या उससे ज्यादा की जो रिटर्न है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईपीएफओ का शेयर बाजार में निवेश सीधे शेयरों में नहीं बल्कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ के जरिए होगा। इस काम में उसकी मदद करेगा एसबीआई म्यूचुअल फंड। जानकारों ने ईपीएफओ के इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि कुछ सालों में ईपीएफओ भारतीय बाजार में बड़े निवेशक के रूप में उभर सकता है। If you take a longer term view, you will find that over a period of time, the returns that come from the equity markets are by far superior in every way. And that is what we need to be able to tell our savers, that to help themselves, they need to get into the equity market and they need to get into it with a long-term view. एक अच्छी शुरुआत है और अभी खाली 5% इंक्रीमेंटल पैसे की बात हो रही है। हो सकता है ये परसेंटेज बढ़ जाए, हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है उसमें से एलोकेशन आना चालू हो। मैं इसको खाली शुरुआत मानता हूं और इसका सही इम्पैक्ट आपको 5 से 7 साल में मालूम पड़ेगा। ईपीएफओ आज की तारीख में करीब 8 लाख करोड़ रुपए का फंड मैनेज करता है। आने वाले वक्त में ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड का 15% तक शेयर बाजार में लगा सकता है। ऐसे में ईपीएफओ ने शेयर मार्केट में निवेश की शुरुआत भले छोटी की है, लेकिन कदम काफी बड़ा उठाया है। मुंबई से वरुण दुबे के साथ धीरज अग्रवाल, दिल्ली। और दिन भर सीमित दायरे में कारोबार के बाद बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। हालांकि मिड कैप शेयरों में आज सुस्ती छाई रही, लेकिन बैंक निफ्टी जोश में ही दिखा। आज के कारोबार में बैंकिंग, ऑटो, फार्मा और कैपिटल गुड्स में तेजी देखने को मिली है। वहीं बाजार का पूरा हाल जानने के लिए चलते हैं अब मार्केट से अनिल सिंह के पास।
काफी इंटरेस्टिंग रहा आज बाजार का कारोबार, और जहां पर आज बाजार का फोकस फिर से दिग्गज शेयरों पर शिफ्ट होता हुआ दिखा और उतार चढ़ाव के बीच कारोबार भी। फर्स्ट हाफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाजार में सुस्ती और मामूली कमजोरी थी, वहीं सेकंड हाफ काफी बेहतरीन 8,600 के पार निकला भी निफ्टी, और क्लोजिंग बेहद करीब 8,600 के, यानी कि एक और अच्छी मजबूत पॉजिटिव क्लोजिंग सेंसेक्स और निफ्टी पर। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जो अब तक बड़ी उछाल दिखा रहे थे, आज फर्स्ट हाफ में तो ये मजबूत थे, लेकिन सेकंड हाफ में आप देख सकते हैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी और फ्लैट क्लोजिंग होती हुई दिखी यहां पर। लेकिन इंटरेस्टिंग रहा बैंक निफ्टी का कारोबार भी, जहां फर्स्ट हाफ में सुस्ती थी, कमजोरी थी, और सेकंड हाफ में जो निफ्टी 8,600 के पार निकला उसकी पूरी क्रेडिट बैंक निफ्टी को जाती है, जो कि 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। वॉल्यूम्स भारी भरकम चल रहे हैं, और बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद पर अगर आप नजर डालेंगे तो आज काफी उतार चढ़ाव वाला मामला यहां पर देखने को मिला, चूंकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर थोड़े कमजोर थे, उस लिहाज से बढ़ने वाले शेयरों की तादाद कम थी, गिरने वाले ज्यादा। तो ये था आज के बाजारों का हाल। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में कंपनियों को सीईओज और कर्मचारियों के औसत सैलरी का अनुपात अब बताना होगा। अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर एसईसी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह आदेश 2017 से लागू होगा। फिलहाल सिर्फ ज्यादा सैलरी पाने वाले अधिकारियों के नाम और वेतन की जानकारी देनी होती है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2013 में अमेरिकी कंपनियों के लिए यह अनुपात करीब 300 गुना है। वहीं 50 साल पहले सीईओ की कमाई कर्मचारियों की औसत सैलरी के मुकाबले सिर्फ 20 गुना ज्यादा थी। भारत में भी लंबे वक्त से सीईओ की सैलरी पर लगाम लगाने की मांग उठती रही है। ब्याज दरें तय करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में गवर्नर का वीटो पावर बना रह सकता है। सरकार की 6 सदस्यीय कमेटी बनाने की तैयारी है। कमेटी में सरकार और आरबीआई की ओर से 3-3 सदस्य हो सकते हैं। कमेटी में गवर्नर की भूमिका टाई ब्रेकर के रूप में हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर ब्याज दरों पर फॉर एग्जाम्पल सदस्य बराबर बटे हों तो गवर्नर का वीटो हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स की पॉपुलैरिटी और पहुंच को देखते हुए अब ऑफलाइन रिटेलर्स तेजी से इनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। आज रिटेल चेन शॉपर्स स्टॉप्स ने भी स्नैपडील के साथ डील का ऐलान कर दिया है। स्नैपडील के को फाउंडर और सीईओ कुणाल बहल का मानना है कि अब ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉमर्स के बीच दूरियां खत्म हो रही हैं और दोनों एक साथ मिलकर एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के लिए अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी कीमत और अच्छा अनुभव सबसे अहम है, और शॉपर स्टॉप के साथ मिलकर स्नैपडील ये डिलीवरी करने की कोशिश कर रहा है। ऑनलाइन की बढ़ती पहुंच का फायदा उठाने के लिए शॉपर स्टॉप अगले 3 साल में ऑनलाइन चैनल पर 60 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। आगे चल के जैसे ही इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ते जाएगा, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ते जाएगा, टैबलेट पेनिट्रेशन बढ़ते जाएगा, तो ऑनलाइन पे आपका रहना और ऑनलाइन की आपकी रीच बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और हाल ही में हमने अनाउंस किया था कि हम करीबन 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं हमारे ऑनलाइन चैनल के ऊपर, ताकि उसका शेयर 1% से 10% बढ़ाया जाए। तो इस दिशा में और एक ये जो हमारा स्ट्रैटेजिक टाइप है स्नैपडील के साथ, ये दोनों कंपनियों की जो स्ट्रेंथ्स है उनको इकट्ठा ला रहा है। तो तमन्ना एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ ये बात इशारा कर रही है कि शॉपर स्टॉप जैसी कंपनी जिसके पास ऑलरेडी पिछले 4-5 साल से खुद का ऑनलाइन सेटअप है, लेकिन वो जाके अब स्नैपडील से हाथ मिला रही है। एक ऑमनी चैनल की बार बार बात करते हैं जब भी हम ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन की चर्चा, और कई बार हम कर चुके हैं, लेकिन बात यह है कि ऑनलाइन से पीछा छुड़ाना अब बिल्कुल नामुमकिन हो गया है, और जो बड़े एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं जिनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है उनका ही दबदबा दिखेगा। राइट, और ऐसी शायद और डील्स हमें भविष्य में भी होती नजर आएंगी। बहरहाल यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एयरटेल ने लॉन्च कर दी अपनी 4G सर्विस। पैकेज में क्या है ये बताएंगे आगे। साथ ही बताएंगे अब क्यों है 4G हैंडसेट पर कंपनियों का फोकस। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में पुराने श्रम कानून बाधा न बने, इसलिए सरकार तेजी से कोशिश कर रही है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार श्रम कानूनों को सरल और तर्क संगत बनाएगी। We want labor laws should be simplified and also rationalized. Okay. For that, 44 central labor laws which are here. So these are 44 labor laws. We wanted to frame into the labor codes. Okay. 4 labor codes we wanted to get in. Okay. In the 4 codes, first is the code on wages. Okay. Second one is
code on industrial relations. Third one is code on social security. Fourth one is safety and security and working conditions. Okay. These are the four codes in which all the existing labor laws, which are cumbersome. टाटा स्टील ने अगले 2 साल में अपने कर्ज में 10,000 करोड़ रुपए की कमी करने का लक्ष्य तय किया है। हमारी एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनियों में हिस्सेदारी वो इसके लिए बेच सकती है। खबर है कि इसकी शुरुआत टाटा मोटर्स में 5.5% यानी 5.5% हिस्सा बेचने से शुरू होगी, जिसके जरिए टाटा स्टील 5,500 करोड़ की रकम जुटाएगी। साथ ही कंपनी कर्ज की रीफाइनेंसिंग भी कर सकती है। हालांकि टाटा स्टील ने इस बारे में खुलकर कोई बात नहीं की है। और वेदांता 10 अगस्त से एक बार फिर गोवा में माइनिंग शुरू करेगी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आयरन और माइनिंग से प्रतिबंध हटाने के बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है। वेदांता को गोवा में 3 माइंस शुरू करने के लिए सभी मंजूरियां मिल चुकी है और इन तीनों माइंस में कंपनी काम शुरू करेगी। इन माइंस में वेदांता को 5.5 MTPA आयरन ओर की उत्पादन क्षमता हासिल करने की उम्मीद है। मानसून के बाद कंपनी गोवा में आयरन ओर की माइनिंग पूरी तरह से शुरू करेगी। उम्मीद है कि माइनिंग दोबारा शुरू करने से वेदांता को फायदा होगा और इसका सकारात्मक असर कंपनी के शेयर पर भी दिखेगा। और अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मार्केट एक्सपर्ट प्रिसिशन इन्वेस्टमेंट के। अविनाश, क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं स्टॉक पर कल? नहीं, मुझे लग रहा है कि तमन्ना कल पॉजिटिव इम्पैक्ट देखना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम तक कंपनी की ये माइंस बंद पड़ी थी और अगर ये माइंस रिज्यूम होती है डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इनफैक्ट काफी हद तक प्रीवियस क्वार्टर में भी मैनेजमेंट ने कहा था कि जब तक ये माइंस शुरुआत नहीं होती तब तक वॉल्यूम जो एक्चुअली इफेक्ट हो गए थे वो बेसिकली बिकॉज ऑफ द बैन ऑन गोवा माइंस। तो अभी डेफिनेटली फ्रॉम द मार्केट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक में काफी पिटाई हमने देखी है, तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव बूस्टर रहेगा स्टॉक के लिए। कल थोड़ी सी डेफिनेटली तेजी इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखने को मिलेगी। जी अविनाश, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और यहां पर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर फ्लैश, वोडाफोन इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अर्जी की है और वोडाफोन इंडिया ने जो 3100 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस उनके पास भेजा था आईटी डिपार्टमेंट पे, उस पर रोक लगाने की उन्होंने मांग की है। इसकी सुनवाई कल होनी है मुंबई हाई कोर्ट में और उस पर वोडाफोन इंडिया ने 3100 करोड़ की इस पेनाल्टी पर रोक लगाने की मांग की है। और एयरटेल ने लॉन्च की 4G सर्विस, पैकेज में क्या है खास, बात करेंगे कंपनी के सीईओ गोपाल विट्ठल से ब्रेक के बाद। और एनुअल जनरल मीटिंग को बड़े कॉर्पोरेट से कैसे बना दिया है मजाक, क्या सिर्फ खाना पूर्ति के लिए की जा रही है एजीएम्स, बात करेंगे एक्सपर्ट से इस छोटे से ब्रेक में। भारतीय एयरटेल ने पूरे देश में 4G सेवा लॉन्च कर दी है। कंपनी का दावा है कि वो 3G के दाम में ही 4G सेवाएं देंगी। एयरटेल के 4G पैकेज में और क्या है खास, जानने के लिए कंपनी के सीईओ गोपाल विट्ठल से बात की हमारे संवाददाता दीपक साहू ने। गोपाल, हम शुरुआत करेंगे जो 4G लॉन्च है आज, किन किन शहरों में कितने टाउन से शुरुआत हो रही है, आगे चल के पैन इंडिया का रोल आउट का क्या प्लान्स रहेगा ओवरऑल? हमने जो हमारे स्पेक्ट्रम जो है 14 सर्कल्स में है, 22 सर्कल्स में 14 सर्कल्स में हमारा स्पेक्ट्रम है और हर एक सर्कल में हमने लॉन्च कर दिया है। 51 सिटीज में हमने लॉन्च किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जहां ज्यादा से ज्यादा डेटा कंज्यूम होता है, जहां डिवाइसेस हैं, और ये हमारी अभी इसलिए कमर्शियल लॉन्च, हमने नेशनल लॉन्च अभी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे रोल आउट ऑब्लिगेशंस है जहां हम नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कंप्लीट करेंगे। 296 टाउन्स में हम शामिल हो जाएंगे। 4G में नेटवर्क का प्रॉब्लम, डाउनलोडिंग स्पीड अगर अच्छी नहीं होगी तो 3G पैक जो है वो एक तरह से फ्री का एक तरह से ऑफर निकल के आ रहा है, क्या वो कुछ लिमिटेड स्पेस के लिए होगा या फिर ओवरऑल डाउन द लाइन क्या रहेगा? हमारा डिसीजन ये है कि हम 4G 3G प्राइसेस में ही देंगे, तो उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं चार्ज करेंगे। इसके अलावा हम 4G में आज हम लॉन्च कर रहे हैं हमारे हाई वैल्यू प्लान्स, इन्फिनिटी प्लान्स, जिसमें हम वॉइस अनलिमिटेड कर रहे हैं, उसमें टेक्स्ट SMS डाल रहे हैं, उसमें म्यूजिक अनलिमिटेड है, मूवीज अनलिमिटेड है और उसके अलावा डेटा भी काफी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा हर एक प्लान में रहेगा। आखिर रोलिंग नेट न्यूट्रलिटी पर जिस तरह से रिपोर्ट आती है कि एयरटेल जीरो प्लान को कहीं ना कहीं उसमें एक फेवर किया हुआ है,
आपका ओवरऑल टेक इस पर क्या रहेगा? देखिए, हमारा व्यू वेरी सिंपल है। हम नेट न्यूट्रलिटी को पूरा सपोर्ट करते हैं। हम हमेशा बोल रहे हैं कि नेट न्यूट्रलिटी को हम सपोर्ट करते हैं। इंटरनेट ओपन होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, उसके कोई वेबसाइट को ब्लॉक नहीं करना चाहिए और प्राइसिंग सबके लिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हमारे कहना यही है कि जहां वॉइस सर्विसेज दिया जा रहा है तो उसको जो रूल्स हम पे रूल्स जो डालते हैं वो रूल्स सबके लिए होना चाहिए। वैसे भारत में 4G सर्विस का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। 4G की बढ़ती क्षमता को देखते हुए तमाम हैंडसेट मेकर्स अब तेजी से LTE और 4G इनेबल्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। हाल ही में OnePlus, इनफोकस, मोटोरोला और सैमसंग ने अपने 4G मोबाइल फोन्स लॉन्च किए हैं। तो क्या अब मोबाइल कंपनियां अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए 4G पर फोकस कर रही है, बता रही है ईशा शर्मा। देश में वैसे तो 4G सर्विस की शुरुआत अभी तक सिर्फ 2 टेलीकॉम कंपनियों ने की है, एयरटेल और एयरसेल। लेकिन इन्हें मिले रिस्पांस से मोबाइल कंपनियां ये समझ चुकी हैं कि 4G ही फ्यूचर है। सस्ते स्मार्टफोन बाजार की लीडर माइक्रोमैक्स 2 4G फोन मॉडल पहले ही उतार चुका है और आने वाले 3 महीनों में कंपनी 5 ऐसे मॉडल और लॉन्च करने जा रही है। मोबाइल हैंडसेट मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग भी 4G मॉडल लॉन्च करने में पीछे नहीं है। LTE is going to be a reality and a essential reality future में भी। हमारे कंज्यूमर्स और हमारे चैनल पार्टनर्स हमसे ये अपेक्षा अवश्य रख सकते हैं कि एज मार्केट लीडर हम हर सेगमेंट में, हर प्राइस पॉइंट में, हर भाग में ऑफ द इंडियन मार्केट LTE डिवाइसेस लॉन्च कर चुके हैं और करेंगे आइंदा। सैमसंग और माइक्रोमैक्स के अलावा लेनोवो, एसूस और चीन की कंपनी Xiaomi भी 4G डिवाइस मार्केट में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। कम दाम में फुली लोडेड स्मार्टफोन और डिवाइस की मांग देखकर कंपनियों ने मिड और लो सेगमेंट पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। करीब 50 से 60% जो हमारा टैम, जिसे हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट कहते हैं, वो करीब 15,000 रुपए के प्राइस रेंज तक होता है। मतलब 0 से लेकर 15,000 रुपए तक के प्राइस रेंज तक होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो सारे प्लेयर्स इंक्लूडिंग मोटोरोला जो हम टारगेट करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंज्यूमर सेगमेंट है जो कोई मिस नहीं करना चाहता। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2014 की तिमाही में देश में 10 लाख से ज्यादा 4G डिवाइसेस इंपोर्ट किए गए थे, जिनमें स्मार्टफोन, टैबलेट और डेटा कार्ड शामिल थे। ये भी माना जा रहा है कि रिलायंस जियो की सर्विस शुरू होने के बाद टेलीकॉम मार्केट के डायनामिक्स बदल सकते हैं। यही वजह है कि हैंडसेट मेकर्स टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ मिलकर 4G फोन लेने पर कई बंडल्ड ऑफर्स भी दे रहे हैं। जाहिर है जैसे जैसे देश में 4G सर्विस का विस्तार होगा, 4G स्मार्टफोन की मांग में और तेजी आएगी और कोई भी कंपनी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। ईशा शर्मा, दिल्ली। बड़े कॉर्पोरेट्स ने एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग का मजाक बनाकर रख दिया है। रिटेल निवेशकों को कंपनी के कामकाज को समझाने और अपनी बात रखने का मौका एजीएम में ही मिलता है, लेकिन ज्यादातर लिस्टेड कंपनियों की एजीएम एक दिन में ही खत्म हो जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एजीएम सिर्फ एक रस्म अदायगी भर रह गई है। इसी पर चर्चा की हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या ने सेबी के पूर्व चेयरमैन JN गुप्ता और जे सागर एसोसिएट्स के पार्टनर सुनील जैन के साथ। आइए आपको दिखाते हैं। क्या एक दिन में एक कॉर्पोरेट ग्रुप अपनी 3-4 कंपनियों की एजीएम एक साथ एक के बाद एक करे, ये सही है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने इसी तरह से अपनी योजना रखी है अगले हफ्ते के लिए, और इसके पहले ADAG ग्रुप भी अपनी तमाम कंपनियों की एजीएम एक दिन में करता रहा है। ये सही है या गलत? हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। JN गुप्ता साहब, सेबी के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मिस्टर गुप्ता, क्या है आपका व्यू? देखिए, मेरा इसमें कहना यह है कि अगर आप बिल्कुल इसको प्योरली लीगल उससे एग्जामिन करेंगे, जो लॉ है और जो सेबी के रेगुलेशन है, तो उसके हिसाब से ये तो लीगली कंप्लायंट है। लेकिन जैसा हम लोग हमेशा बोलते आ रहे हैं कि एक जगह होता है कि लॉ का पालन करना और एक होता है कि जो नियम बनाया गया उसके पीछे का मतलब देखना कि किस वजह से बनाया गया है। मेरा मानना यह है कि एजीएम एक साल में एक ऐसा मौका होता है जहां पे सारे ओनर्स अपने मैनेजमेंट के साथ इकट्ठा होते हैं और उनको पूरा मौका मिलना चाहिए
कि जो उनको कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए, कुछ डिस्कशन करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन करना है, तो वो अवेलेबल होना चाहिए। और जो एजेंडा आइटम होते हैं जिस पे वोटिंग होती है उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। तो एक तरफ तो ये है। अब अगर आप थोड़े थोड़े समय के लिए एजीएम करेंगे तो उसमें एक तो ये हो जाता है कि आप शेयर होल्डर्स को बहुत कम समय दे रहे हैं, और जैसा मंदिर में होता है कि दर्शन कीजिए और धक्का दे के आपको बाहर कर दिया जाता है, बिल्कुल वही वाली सिचुएशन हो जाती है कि आपको 1 घंटे में एजीएम कंप्लीट करनी है। उसमें पूरा एंट्री का भी वो करना है, वेरिफिकेशन क्यों भी अभी करना तक ऐसा है। नहीं हुआ है कि सेबी ऐसे नियम बनाए कि एजीएम कितनी देर चलेगी, कम से कम कितने शेयर होल्डर्स को एजीएम में बोलने का मौका दिया ही जाएगा, उनके सवालों के जवाब दिए ही जाएंगे, ऐसे नियम क्यों नहीं? देखिए सब, हर चीज के लिए जिंदगी में नियम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि नियम के पीछे का जो इंटेंशन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे नियम की जगह प्रिंसिपल होना चाहिए कि हमारा प्रिंसिपल ये है। लेकिन मेरा इसमें सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि जो हमारा अभी प्रेजेंट लॉ है, जो ई वोटिंग वाला लॉ है, उसके मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो एजीएम का मतलब ही खत्म कर दिया गया है कि वोटिंग जो है एजीएम के पहले हो जाती है खत्म। तो जिस चीज पे वोटिंग होनी है उस पर डिस्कशन, चर्चा तो हुई नहीं, और उस पर पहले ही वोटिंग होके खत्म हो गया। तो जिस चीज का रिजल्ट सील्ड हो गया है उस पर डिस्कशन सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मेरा ये मानना है कि हम सबको इसको होलिस्टिक देखना पड़ेगा। एमसीए को अपने रूल चेंज करने पड़ेंगे कि वोटिंग जो हो एजीएम में जब डिस्कशन हो उसके बाद चालू हो, और कॉर्पोरेट्स को भी ये देखना पड़ेगा कि क्या शेयर होल्डर के लार्जर हित में है। अब आप देखिए कुछ कॉर्पोरेट का मानना यह है कि ऐसा वो जो 3 एजीएम को एक साथ करते हैं ये शेयर होल्डर के हित में है। ये शेयर होल्डर बोलते हैं कि हमको 3 दिन अलग अलग दिन ट्रेवल नहीं करना पड़ता है, खर्चा नहीं करना पड़ता है। ये उनकी बात भी सही है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ देखिए, अगर आप आधे घंटे में या 1 घंटे में एजीएम खत्म करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये प्री डिसाइडेड कर लिया है कि ये क्वेश्चन होगा, ये आंसर होगा, इसमें इतना टाइम होगा। जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट होती है उस तरह स्क्रिप्ट रख के इस पर सुनील मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि गुप्ता साहब ने एक बहुत पर्टिनेंट इशू उठाया है कि आप भले ही एक दिन में 3-4 एजीएम्स कर लें एक ही ग्रुप की, शायद एक शेयर होल्डर के लिहाज से मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होगा, लेकिन आप पहले से समय कैसे तय कर सकते हैं कि एक ही घंटे में आप तमाम इश्यूज उस कंपनी के निपटा लेंगे, बता भी देंगे कि आपने क्या प्लान किया है, शेयर होल्डर से बात भी कर लेंगे और उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड में दूसरी एजीएम शुरू करेंगे? देखिए, एक एजीएम के लिए कितना समय एडिक्वेट रहेगा ये तो उसके बिजनेस पर, उसके साइज पर, उसमें जो इक्विटी शेयर होल्डर का पैटर्न है वो किस तरह से है, मेजर स्टेक होल्डर्स कौन है, उस पर भी डिपेंड करेगा। बट मैं समझता हूं कि एक इसमें लार्जर पर्सपेक्टिव जरूरत है। जो भी रेगुलेटर्स इन्वॉल्व हैं, जो भी सभी स्टेक होल्डर्स इसको देख रहे हैं, उन सबको एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का रास्ता इस सारे मामले में तय करना पड़ेगा। हमें ये देखने की जरूरत है कि किस तरह से हम ये जो एक एस्टेब्लिश मार्केट प्रैक्टिस है जिसमें कि हम शायद किसी एक प्लेयर को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, इस मार्केट प्रैक्टिस को हम कैसे और गवर्नेंस से जोड़ सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को इसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये देखना बेहद अहम होगा कि कंपनियां एजीएम को कब गंभीरता से लेना शुरू करती हैं और शेयर होल्डर्स को उनका हक कब तक मिलता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद संसद में पाकिस्तान के आतंक पर बोले राजनाथ। पूरी खबर देखिए आगे। साथ ही देखिए कैसे मेडिकल पर हावी हुआ माफिया। आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उधमपुर में हुए आतंकी हमले की पूरी जानकारी संसद को दी। सदन में उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तार आतंकी नावेद पाकिस्तानी है और उसके पकड़े जाने से सीमा पार से आतंक को बढ़ावा देने से जुड़े कई और खुलासे हो सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार नावेद के पाकिस्तानी होने से इनकार कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने पाकिस्तान में नावेद के पिता से बात होने का दावा किया है। प्रारंभिक पूछताछ में पकड़े गए आतंकवादी ने अपना नाम मोहम्मद नावेद उर्फ
उस्मान निवासी फैसलाबाद पाकिस्तान बताया है। उसने अपने मारे गए साथी का नाम मोहम्मद नोमेन उर्फ नोमीन कोड नाम निवासी भावलपुर पाकिस्तान बताया है। आज लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी अपना जमकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि ललित मोदी की मदद का आरोप उन पर लगाना निराधार है क्योंकि उन्होंने ललित मोदी की मदद की नहीं है। सुषमा स्वराज ने सफाई दी कि ब्रिटिश सरकार से ललित मोदी के लिए उन्होंने किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं की। ये कहना चाहती हूं कि ये आरोप सिरे से गलत है, असत्य है, निराधार है। अध्यक्ष जी, मैंने कभी भी ब्रिटिश सरकार से ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने का अनुरोध नहीं किया। मैंने कभी भी ब्रिटिश सरकार से ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने की सिफारिश नहीं की। मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं की, कभी रिकमेंडेशन नहीं की। और देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट AIPMT इस साल पेपर लीक होने की वजह से दोबारा कराना पड़ा है। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में पेपर लीक या मास कॉपिंग की घटनाएं सामने आई हैं। हर बार प्रशासन की तरफ से व्यवस्था ठीक करने का दावा होता है, लेकिन नकल करने वाले और उनकी मदद करने वाले सारे इंतजाम पर भारी पड़ जाते हैं। आखिर कैसे चलता है नकल करने और करवाने का ये पूरा सिस्टम, आइए देखते हैं। पिछले साल भर में देश के अलग अलग हिस्सों में एग्जाम से पहले पेपर लीक की करीब दर्जन भर घटनाएं सामने आईं। इनमें ताजा तरीन AIPMT से लेकर उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट और जामिया मिलिया के BTech और BS एंट्रेंस एग्जाम शामिल थे। वैसे तो भारत में नकल कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय में चीटिंग सिंडिकेट ने एग्जाम में गड़बड़ी के कई नए तरीके निकाल लिए हैं। इनमें एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की जगह दूसरे को बैठा देना, आंसर शीट बदल देना और मार्क्स देते समय उनमें उलटफेर करना शामिल है। They have taken the theme and inspiration from this kind of frauds happening across the country by impersonating with people who are capable of writing, who are capable of performing the examination well. They are able to successfully make the candidate pass, whereas the actual examination is written by somebody else. इन सब के अलावा आजकल नकल के मॉडर्न तरीके भी निकल आए हैं। नकल करने वाले छात्र ब्लूटूथ डिवाइसेस और हिडन कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई कैंडिडेट्स पकड़े गए जो एग्जाम में माइक्रो ईयरफोन, बटन होल कैमरा और माइक्रो ईयर प्लग्स इस्तेमाल कर रहे थे। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के पर आधारित डिवाइसेस होती हैं। अब ये डिवाइसेस न केवल आपके कान में फिट हो जाती हैं, आपके ताबीज में फिट हो जाती हैं, आपकी कलम में फिट हो जाती हैं, आपके हेयर बैंड में फिक्स हो जाती हैं, यहाँ तक कि आप जो कुछ करना चाहें, कुछ तो अब ऐसे भी डिवाइसेस आ गए हैं जो आपके बनियान में फिट हो जाते हैं। नकल करने वाले इन डिवाइसेस का इस्तेमाल एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अपने साथियों को सवाल भेजने के लिए करते हैं, जो उन सवालों के जवाब भेज देते हैं। अगर आपको ये लगता हो कि ये डिवाइसेस हासिल करना कोई मुश्किल काम है, तो आप गलत हैं। इस तरह की जो चीटिंग डिवाइसेस हैं आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं, आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई कानून विद्यमान नहीं है जो इस तरह की सेल ऑफ डिवाइसेस के ऊपर कोई नियंत्रण लगाता है। जब तक ऐसे कानून नहीं बनते, तब तक अथॉरिटीज के सामने सतर्क रहने और सख्ती बरतने के अलावा कोई उपाय नहीं है। हालांकि इसके अलावा इस बात की भी जरूरत है कि चीटिंग सिंडिकेट की पहचान कर उन्हें कड़ी सजा दी जाए। धीरज अग्रवाल के साथ नवेंदु शुक्ला, दिल्ली। और दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 सितारों में कौन कौन है शामिल, देखिए इस ब्रेक के बाद। साथ ही दिखाएंगे आपको एसूस के 3 नए स्मार्टफोन, लौटेंगे जल्दी। HDFC बैंक और स्टार्टअप्स विलेज ने मिलकर कोच्चि में आज स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल अकाउंट ओपनिंग सिस्टम और क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। स्टार्टअप विलेज की कंपनियों को अब करंट अकाउंट खोलने के लिए बैंक की ब्रांच तक जाने की जरूरत नहीं होगी। ये स्टार्टअप ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपना अकाउंट खोल सकेंगे। इसके साथ ही एक एक्सक्लूसिव बिजनेस कार्ड भी मुहैया कराया जाएगा। यंग एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए PPP मॉडल पर यह स्टार्टअप विलेज
किन्फ्रा कोची में स्थापित किया गया है। सिलिकॉन वैली में काम करने वाली कंपनियों के लिए बने सिलिकॉन वैली बैंक की तर्ज पर एचडीएफसी बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए खास तौर पर यह सेवा शुरू की है। एचडीएफसी बैंक के मुताबिक ये सेवा पिछले दिनों वाराणसी से शुरू की गई और उसके डिजिटल बैंकिंग की पहल बैंक आपकी मुट्ठी में का ही एक हिस्सा है। बैंक जल्द ही देश के अलग अलग हिस्सों में इस पहल को आगे बढ़ाएगा। और अमिताभ बच्चन, सलमान खान और अक्षय कुमार दुनिया के टॉप 10 कमाए वाले शामिल हो गए हैं। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक अमिताभ, अक्षय कुमार और सलमान की कमाई कई मशहूर हॉलीवुड अभिनेताओं से भी ज्यादा है। लिस्ट में अमिताभ बच्चन और सलमान खान दुनिया भर के टॉप कमाऊ एक्टर्स में 7वें नंबर पर हैं, तो अक्षय कुमार 9वें नंबर पर काबिज है। शाहरुख खान 18वें, तो रणवीर कपूर 30वें नंबर पर है। वैसे दुनिया में सालाना कमाई के मामले में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने सबको पीछे छोड़ दिया है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक ही साल में सबसे ज्यादा $80 मिलियन यानी 509 करोड़ रुपए कमाए। ये आंकड़े जून 2014 से जून 2015 की कमाई के आधार पर तैयार किए गए हैं। ताइवान की स्मार्टफोन कंपनी आसूस ने आज एक साथ 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। मिड सेगमेंट के ये स्मार्टफोन हैं ज़ेनफोन 2 डीलक्स, ज़ेनफोन 2 लेजर और ज़ेनफोन सेल्फी। इन स्मार्टफोन में क्या है खास, बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में Xiaomi, OnePlus 2 और माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियों को टक्कर देने के इरादे से आसूस ने अपनी ज़ेनफोन सीरीज में 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए। इनमें पहला ज़ेनफोन 2 डीलक्स, जो दुनिया का पहला 4GB रैम स्मार्टफोन है। क्रिस्टल पॉलिश बॉडी के साथ लॉन्च की गई इस फोन की कीमत रखी गई है 22,999 रुपए। इसके अलावा आसूस ने ज़ेनफोन 2 लेजर स्मार्टफोन भी उतारा है, जिसे खास तौर पर फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बनाया गया है। ये स्मार्टफोन कम लाइट में भी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देगा। इसे 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिनकी कीमत 9,999, 13,999 और 16,999 रुपए रखी गई है। Zenfone 2 laser, and we show that because of our our premium kind of laser autofocus, so compared with the traditional contrast based, I think it's almost twice as fast, especially in the low light situation. 2 फोन के अलावा तीसरा है ज़ेनफोन सेल्फी, जिसे लॉन्च किया बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने। इसमें खास फीचर्स के साथ 13 मेगापिक्सल फ्रंट और बैक कैमरा दिया गया है, ताकि आप परफेक्ट सेल्फी क्लिक कर सकें। इस स्मार्टफोन की कीमत है 15,999 रुपए। कंपनी के मुताबिक ये सभी स्मार्टफोन फीचर्स के मामले में आईफोन 6 प्लस से भी बेहतर हैं। आसूस भारत को एक बड़े मार्केट के तौर पर देख रहा है और इस मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने पर भी विचार कर रहा है। दीपाली नंदा, दिल्ली। आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।